જો દારાસિંહને રોજે 2 લીટર દૂધ પીવાથી ફાયદો થાય છે તો હું રોજે 2 લીટર दूध पीस तो હું પણ તગડો પહેલવાન બની જઈશ ને। दारासिंह की बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। दारासिंह के डीएनए भी अलग है, जीन्स अलग है, आपका बॉडी आपका जीन्स अलग है। ज्यादा दूध आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा ये आपका डीएनए बताएगा। સર તમે જે ડીએનએ અને જીન્સની વાત કરો છો એ આપણા મા-બાપના ડીએનએ આપણને ઉતરે તો અગર બે ટ્વિન્સ બાળકો છે તો એ બંનેના ડીએનએ તો સરખા જ હશે ને। दो लोग एक जैसे होते नहीं है, भले वो भाई और बहन क्यों ना हो या सेम घर के फैमिली के मेंबर्स क्यों ना हो, डीएनए सबका अलग होता है। આ ડીએનએ ટેસ્ટિંગ તો સીઆઈડી જેવા શોમાં કાતિલને પકડવા માટે હોય છે, એ જ ડીએનએ ટેસ્ટિંગ ને। डीएनए टेस्टिंग बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ये जो आपने जिक्र किया वो है फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग, लेकिन उसके अलावा न्यूट्रीजेनोमिक्स है या कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, यंग दिख सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं, ये भी आप जेनेटिक टेस्टिंग से जेनेटिक से पता कर सकते हैं। એટલે શું એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે જેનેટિક ટેસ્ટિંગ કરાવવાથી મારા ડીએનએ ને ઓળખવાથી મારે શું ખવાય શું ના ખવાય એ મને ખબર પડી જશે। डीएनए टेस्टिंग से आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन आपके लिए घातक हो सकता है, ये आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज आपको इंजरी करेगा और किस तरीके के अलग अलग लाइफस्टाइल को आपको अपनाना है, ये सभी कुछ आप डीएनए टेस्टिंग से कर सकते हैं। આટલી બધી વસ્તુઓ ડીએનએ ટેસ્ટિંગ થી ખબર પડે છે તો આ ડીએનએ ટેસ્ટ કરવા માટે બ્લડ સેમ્પલ આપવું પડે। ब्लड की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सेल से कर सकते हैं। तो सलाइवा सैंपल इज द बेस्ट ऑप्शन और इंडिया में हम लोग सलाइवा सैंपल थूक से करते हैं। તો હવે જેનેટિક ટેસ્ટિંગ થી આપણા શરીર વિશે આટલી બધી વસ્તુઓ ખબર પડે છે તો શું મને શું રોગ થવાના છે આગળ જઈને એ પણ ખબર પડી જાય। डीएनए टेस्टिंग से आपको आगे क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं या नहीं आ सकती, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये पता कर सकते हैं। इट इज प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। તો પછી એ જેનેટિક ટેસ્ટિંગ કે ડીએનએ ટેસ્ટિંગ થી ફાયદો કઈ રીતે થાય છે? डीएनए टेस्टिंग से बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं शॉर्ट में आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप डिटेल में इसको समझ पाएंगे। એક વાત કહુંમાં આપનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર અને આપણા શરીરમાં કયા કોષે કયું કામ કરવાનું એ કામ એ કોષને કોણ કહે છે? એ કોષને એ કામ કહે છે આપણા શરીરનું ડીએનએ, આપણા શરીરના જેનેટિક્સ। એ જેનેટિક્સ એ ડીએનએ નક્કી કરે છે કે આપણું શરીર કેવું હશે, કઈ વસ્તુઓ આપણને સદશે, કઈ વસ્તુઓ નહીં સદે। અને એ જેનેટિક્સ ઓળખવા માટેનો એક ટેસ્ટ છે, જે ટેસ્ટ વિશેની માહિતી મેળવવા માટે આજે હું બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ જોડે આવ્યો છું। વ્યક્તિ કોણ છે તો એ છે સ્ટેન સેરાઓજી। થેન્ક યુ સો મચ સર, તમે અમને સમય આપ્યો છે। સરનું હું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપું। સર વેલોસિટી જેનેટિક્સના સીએમડી છે, જે આપણા દેશમાં જે પાયોનિયર્સ કહેવાય ને જેનેટિક સિક્વન્સિંગના, જેનેટિક ટેસ્ટિંગના, એમાંથી એક છે સર। છેલ્લા 7-8 વર્ષથી જેનેટિક ટેસ્ટિંગ કરે છે અને 12,000થી વધુ લોકોનું જેનેટિક સિક્વન્સિંગ સરે કરી દીધું છે। સર છેલ્લા 20 વર્ષથી ડાયટ અને વેલનેસ ફીલ્ડ સાથે સંકળાયેલા છે। એમની જોડે એક ઓનરરી ડોક્ટરેટ પણ છે વેલનેસમાં। અને સર ગુજરાતી એમ તો સમજે છે, ગુજરાતી બોલી પણ શકે છે, પણ એમને જે ઇન્ફોર્મેશન આપવી છે ને એ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં એ હિન્દીમાં વધારે કમ્ફર્ટેબલ છે। તો હું પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં પૂછીશ, તમે પિક્ચરો જોવો છો મને ખબર છે, એટલે હિન્દી ભાષા તમે સમજી રહેશો એ પણ મને ખબર છે। તો હવે સર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જે હું તમને પૂછવા માંગુ છું એ છે કે આપણા શરીરનો જે ડીએનએ છે ये डीएनए આપણે अगर सिंपल लैंग्वेज में समझવો હોય तो ये હોય શું? जैसे हम लोग एक किताब को पढ़ते हैं तो किताब में चैप्टर्स है, चैप्टर्स में पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स में से आपको एक शब्द मिलेंगे और शब्द के बाद में आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे। तो वैसे हमारा शरीर भी ऐसे ही मॉलिक्यूल से बना हुआ, एक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स ऑर्गन से बने हुए हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हुए हैं, टिश्यूज में सेल्स हैं और ये सेल्स के अंदर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर आपको मिलेगा डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर deoxyribonucleic एसिड और इस डीएनए के अंदर है जीन्स। एक जीन, एक सेल के अंदर करीबन 20 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो जैसे हम लोग एक किताब को समझते हैं कि ये पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे स्ट्रक्चर को, डीएनए स्ट्रक्चर को भी पढ़ने की टेक्नोलॉजी अभी आ गई है एंड दैट इज जेनेटिक सीक्वेंसिंग। सो ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर। तो सर आपने जो जेनेटिक टेस्टिंग बताया वो जेनेटिक टेस्टिंग होता क्या है और कैसे करते हैं उसे? जैसे हम लोग बीमारी आ जाती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि क्या रीजन है या क्या मुझे बॉडी में तकलीफ है जिसकी वजह से मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे बीमारी आ रही है। लेकिन अगर मुझे पूरे लाइफ टाइम में मुझे क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं
या अभी के जो बीमारी का मूल कारण या रूट कॉज क्या है, अगर इसको पता करना है तो जिंदगी में एक बार आपको डीएनए टेस्टिंग करना पड़ेगा। और ये डीएनए टेस्टिंग करने से आपको अभी के एग्जिस्टिंग बीमारी जो भी हैं या जो भी हेल्थ कंडीशन है उसका मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ये पता चलेगा। और आगे क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं जो आपको अनुवंशीय तरीके से, हेरिडिटी तरीके से आई हैं, इसका आपको इनसाइट, सुराग मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट हम लोग हमारी लाइफस्टाइल को, न्यूट्रिशन, फूड को, एक्सरसाइज को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, एक अनोखा लेटेस्ट साइंस है जो हर एक व्यक्ति को जिंदगी में एक बार डेफिनेटली करना जरूरी है। बेसिकली હું જેટલું સમજુ છું डीएनए टेस्टिंग से पता लग जाता है कि हमारे बॉडी का कोड क्या है और इस कोड को कौन सी चीज प्रेफरेबल है, कौन सी चीज नहीं प्रेफरेबल है, वो पता लग जाता है। बिल्कुल। डीएनए टेस्टिंग को अगर मैं समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूंगा, जैसे आपने बताया कि दारा सिंह दूध पीते हैं करके, अगर मैं भी पी लूंगा, लेकिन दारा सिंह की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, उनका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है। सो उनको फायदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि ये मेरी बॉडी अलग है, मेरा जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। दूसरा एक एग्जाम्पल अब देखेंगे कि उसेन बोल्ट या बहुत सारे ऐसे, कार्ल लुइस जैसे लोग हैं, स्प्रिंटर का रेस, 100 मीटर का रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, ओलंपिक मेडल जीतते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्प्रिंटर का जीन जिसके पास नहीं है वो रेस नहीं भाग पाते हैं, और ये लोग मैराथन को नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि उनके लिए आपको एंड्योरेंस का जीन या अलग तरीके का जेनेटिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर आप पूरे दुनिया में देखेंगे, अफ्रीकन्स, केन्या, नैरोबी से जो लोग हैं, ये मैराथन का रेस जीतते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। इंडिया का ओलंपिक का परफॉर्मेंस आपको तो पता ही है, तो हमारे पास ऐसे जीन्स नहीं है जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा एथलेटिक बना पाए। वी आर डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी हैं, हमारा इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है इंडिया में, बट फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास वो जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोगों को अपनी पहचान पता करने के लिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे पास क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार जेनेटिक प्रोफाइलिंग, सीक्वेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे साइंटिफिक तरीके से मेरे बॉडी की पहचान हो जाएगी। ना केवल बीमारी आने के बाद में मैं जांच करा दूंगा, दिस इज कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति भी अपना जेनेटिक की पहचान बना सकता है। और ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं सर? ये जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए आपको सिंपल कोई एक बायोलॉजिकल सैंपल देना पड़ता है। बहुत आसान तरीका है कि आप सलाइवा सैंपल को हम लोग कलेक्ट करेंगे, और ये सलाइवा सैंपल को हम लोग डीएनए के स्पेशलाइज्ड लैब होते हैं तो वहां पे भेज देंगे। तो करंटली हम लोग इसको जर्मनी में बेचते हैं, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के तहत हम लोग डीएनए का पूरा सीक्वेंसिंग करते हैं। इट टेक्स अराउंड 3 to 4 weeks for the sequencing. So we are checking for 6.5 lakhs of markers, और उसमें से 3000 से भी ज़्यादा मार्कर का 300 डीएनए टेस्ट हम लोग अलग अलग तरीके के करते हैं। और इससे हम लोग पता चलता है, हम सभी लोगों को पता चलता है कि क्या मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे कार्डियक के रिस्क है, नहीं है, क्या मुझे शुगर हो सकता है, या अगर ऑलरेडी है उसका मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, क्या मेरे अलग अलग ऑर्गन्स राइट फ्रॉम माई हेड टू टो, जो भी ऑर्गन्स हैं उसकी हेल्थ कैसी है, और उसके साथ साथ मुझे कैसा एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, रात को करना चाहिए, और मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, कि क्या मैं शॉर्ट टेम्पर्ड में हूँ, क्या मैं जोवियल आदमी हूँ, क्या मैं खड़ूस आदमी हूँ, या एक तरीके से मैं बहुत तरह कैलकुलेटिव आदमी हूँ। ये सभी मेरे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो है एक डीएनए टेस्टिंग से हम लोग पता कर सकते हैं। तो હવે સર તમારી જોડે હું મારો ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવું છું, તો તમારો જે વેલોસિટી જેનેટિક્સ ડીએનએ ટેસ્ટિંગ પ્રોગ્રામ છે, એ પ્રોગ્રામ હેઠળ મને ટેસ્ટ પછી શું શું ખબર પડશે મારા વિશે? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक टेस्ट है, जिंदगी में एक ही बार कराने वाली है। तो इसमें 22 पैनल्स हैं। आप न्यूट्रिशन, कौन सा खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते, ये पता कर सकते हैं। आपके अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स हैं, उसको क्या आगे बीमारी आ सकती है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज पता कर सकते हैं, जिससे कि आप आपके डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज मील प्लान, डाइट प्लान आपको मिलता है, पर्सनलाइज सोल्यूशन मिलता है आपके डीएनए, आपके जीन्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को हमारे जो जीन बेस्ड सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, गेहूं या उससे बनी हुई चीज़ों की चीज़ खाने से उनको तकलीफ होती थी, तो उनका ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो था हम लोगों ने बता दिया, तो अभी उन लोगों ने अवॉइड कर दिया, तो उनको अभी उनका वेट कम हो गया, दे आर लुकिंग यंगर, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। वी हैव कैफीन इंटॉलरेंस, ये एक और बहुत पॉपुलर है, जो कॉफ़ी पीने से भी लोगों को तकलीफ होती थी, उन्होंने कॉफ़ी छोड़ दिया तो उनको बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो वी हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस। आप अभी भी ऐसी धारणा है कि लोगों को दूध पीना चाहिए जीवन भर, तो वो हम लोगों ने बोल दिया कि आपको लैक्टोज का इंटॉलरेंस है, लैक्टेस एंजाइम आपके शरीर में आता नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को डायरिया या बहुत सारे जो डाइजेस्टिव रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो गए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो मेडिसिन जो लेते थे फॉर वेरियस कंडीशंस, तो वो भी कम हो गए, ऑल बिकॉज उन्होंने अपने जेनेटिक्स को जाना और क्या करना चाहिए ना करना चाहिए जो हम लोगों ने बता दिया उसको उन लोगों ने फॉलो कर दिया। तो जेनेटिक से हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हम डिसीजेस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर क्या कैंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे ऐसे कोई डिसीजेस हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो 5 to 10% जेनेटिक एलिमेंट है, लेकिन अभी रिसर्च ये बताता है कि 90% इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। सो हम लोग फोकस करते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों के ऊपर, यू नो वेदर इट इज ओबेसिटी, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस जो बड़ी बीमारी के तौर पे अभी उभर के आ रहा है, यू नो डायबिटीज, एक यू नो इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, और उसके बाद में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज लोग नहीं कर पा रहे, तो कौन सा सही एक्सरसाइज है, कब कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यस, बीमारियों को आप पता कर सकते हैं इंक्लूडिंग कैंसर, बट कैंसर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो इसके लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जो भी बीमारियां हैं वो सभी वेलोसिटी जेनेटिक्स डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम में कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो इंटेंसिव एक्टिविटीज करते हैं, वेदर इट इज यू नो जिम में जाके ट्रेडमिल में जाना या गरबा खेलना या बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करना, वो कोलैप्स हो जाते हैं और कई बार फेटल भी हो सकता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास ये जीन है। अगर पता रहता हम भी सजेस्ट करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवॉइडिंग। तो ये होने से आगे आने वाली जो फेटल चीजें हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। એટલે ફેટલ વસ્તુઓ એટલે જીવલેણ ઘટનાઓથી આપણે બચી શકીએ છીએ। તો અગર હું તમને એવો સવાલ પૂછું કે શું હું મારી એજ લાંબી કરી શકું જેનેટિક ટેસ્ટિંગથી, तो एनो जवाब शो। यस, एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है अभी, यू नो एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो यंग दिखे, उनकी एज बढ़ नहीं पाए, और ये पॉसिबल है अगर आप अपने जेनेटिक्स के टेस्टिंग करेंगे तो, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर एक टेलोमियर्स है, और वो टेलोमियर्स का लेंथ अगर हम लोग बरकरार रखेंगे और वो शॉर्ट नहीं होगा तो वो क्रोमोसोम, वो सेल, वो टिश्यू, वो ऑर्गन, एवरीथिंग तंदुरुस्त रहेगा और आपकी बायोलॉजिकल एज को वो यंग दिखने में मदद करेगा। सो एंटी एजिंग के लिए और लॉन्जिविटी के लिए डीएनए टेस्टिंग इज एन एब्सोल्युटली रेकमेंडेड यू नो फील्ड ऑफ साइंस एंड हेल्थ साइंसेस, जिसको आपको करना जरूरी है। હવે હું નેક્સ્ટ સવાલ પૂછું એની પહેલા હું કહેવા માંગુ છું કે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ નંબર ઉપર કોલ કરીને તમારો જેનેટિક ટેસ્ટિંગ કેટલામાં થઈ શકે એની માહિતી તમે લઈ શકશો સરને કોલ કરીને। અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમે કોલ કરો ત્યારે મારું નામ દેજો, 20% ડિસ્કાઉન્ટ 100% તમને મળી જશે। હવે સર, જે તમને કોલ કરે છે એ કોલ કરનારા લોકો કે જે जेनेटिक टेस्टिंग करावे છે એમને તમે શું ટિપ્સ આપશો? मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप तंदुरुस्त जीवन जीना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, तो ही आप हमको कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग आपको एक वंस इन अ लाइफ टाइम डीएनए टेस्टिंग करके 900 पेज लंबा एक ऑनलाइन यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए आपको हम लोग आपका पूरा जन्म कुंडली हम लोग देते हैं। उसके बाद में एक शॉर्ट एक पीडीएफ में आपको समरी रिपोर्ट देते हैं। 1 घंटे का हम लोग जेनेटिक एक्सपर्ट जो काउंसलर्स हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके डूज डोंट्स, आपको क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं नहीं आ सकती, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे, और उसके बाद में हम लोग आपको सॉल्यूशंस भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ये सब करने के बाद में अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली यू नो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, तो ये ना करें। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली करें। मैं खुद मेरे जो जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में जो भी मुझे इनसाइट्स मिले हैं, वेदर कि मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है या ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है या मुझे कौन से टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए, मैं खुद जी रहा हूँ, और इसको भी आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको करें। लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो अगर आप कमिटेड हैं तो ये जेनेटिक टेस्टिंग को, एक प्रोफाइलिंग को वंस इन अ लाइफ टाइम आप डेफिनेटली करें। आपको इसमें से बहुत फायदा मिलेगा, आपको एक जीपीएस मिलेगा सही डेस्टिनेशन, मंजिल तक जाने का, हेल्दी, हैप्पी एंड यू नो यंगर। વાવ, મતલબ જેનેટિક ટેસ્ટિંગથી મને તો એક વસ્તુ ખબર પડી છે, એ આપણને એવું કહે છે કે આપણું શરીર પેટ્રોલની ગાડી છે કે ડીઝલની। ડીઝલની ગાડીમાં પેટ્રોલ ના નખાવાય ને પેટ્રોલની ગાડીમાં ડીઝલ ના નખાવાય, ને આપણું વાહન કયું ઈંધન યુઝ કરે છે એ આપણને આ જેનેટિક ટેસ્ટિંગ કહે છે। હવે સર, થેન્ક યુ સો મચ, તમે અમને સમય આપ્યો છે આ જેનેટિક ટેસ્ટિંગને લઈને આવી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સાયન્ટિફિક ડિસ્કવરી વિશેની માહિતી અમને આપી છે, અને જેનાથી અમે પોતાની જાતને વધારે ઓળખી શકીએ।
સ્ટેન સેરાવજી આપણી જોડે જોડાયા હતા. મેં તો મારા મનમાં આવતો દરેક પ્રશ્ન પૂછી લીધા છે. અગર તમને કોઈ નવો પ્રશ્ન થાય છે તો કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો, કે પછી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે નંબર ઉપર કોલ કરીને પ્રશ્ન પણ એમને પૂછી શકો છો. એ પ્રશ્નનો જવાબ એ તમને આપી જ દેશે. અને આવી જ માહિતી જો તમને જોવી ગમે છે તો બસ એના માટે એક વાત કહું, જોતા રહેજો vtvgujarati.com પર. આપણે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ સર समय देने के लिए. थैंक यू सो मच वीटीवी और पूरे आपके टीम के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.